Okay, students, page number 45. Find out, uh, do all animals grow at the same speed? So, do all the animals grow at the same speed? No, they have different speed of growing. Discuss about the growth of hen, a crow, and a bird. Okay, so they have a different growth of speed. So you can find about the growth of hen, a cow, and a bird in the means on Google. You can search and find out. Draw picture of the baby animal and the big animal. Like here, you can see the picture like a small baby and it is big animal. Here are the picture of grandfathers posing for a photograph. Who looks the oldest to you? So here 1, 2 and 3. So here elephant. Elephant is Appu's grandfather. Choo-choo, Red's grandfather, and Rani's grandfather. Okay, so elephant means Appu's grandfather is 95 years old. Choo-choo, Red's grandfather 2 years old, and Rani's grandfather 70 years old. So here are the picture of grandfather posing for a photograph. Who looks oldest to you? So oldest is elephant. Okay, because it is 95 years old. Next, how much older is Appu's grandfather than Rani's grandfather? So Appu's grandfather is elephant 95 and Rani's grandfather is 70. So 95 minus 70. 95 minus 70, so it is 25 years old. So elephant, it means Appu's grandfather is 25 years older than Rani's grandfather. Will Choo-choo's grandfather ever grow as old as Appu's grandfather? Only Choo-choo means Red's grandfather is 2 years old. So no. How much younger is Choo-choo's Red's grandfather than Rani's grandfather? So Rani's grandfather is 70 years old and Choo-choo Red's grandfather is 2 years old. So 70 minus 2 to 68 years old. Okay, so Rani's grandfather is 68 years older than Choo-choo means Red's grandfather. Next page. So here we have two letters. So holidays are fun. So of course Atif's holidays had begun. He was very excited. So Atif holidays had begun. So he was very excited. वो बहुत ही excited था. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Sabana. तो उसकी जो कज़िन थी सबाना उसको ये लेटर के थ्रू बताना चाहता था कि हाउ एक्साइटेड ही वॉज. सो ही रॉट हर अ लेटर. तो उसने उसको लेटर लिखा. सो हियर एड्रेस लिखा अजमेर. मीन्स कौन सी डेट को लिखा? मीन्स 1/5/2006. तो 1 May 2006. तो डियर सबाना आपा. आपा मीन्स सिस्टर. हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन हियर आपा. सो मैं यहाँ पर फाइन हूँ. माई हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. सो फ्रॉम टुडे मीन्स फर्स्ट में से उसके हॉलीडे स्टार्ट हो गए. सो आई एम गोइंग टू माई नानीज प्लेस ऑन 5th May 2006. सो मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ 5th May को. आई विल बी बैक ऑन 20th May मीन्स 20 तारीख. मीन्स मे की 20 तारीख को मैं वापस आ जाऊँगा. माई स्कूल विल रीओपन ऑन 36 2006. मीन्स जून मंथ की 30 तारीख को इन 2006 में मेरी स्कूल वापस रीओपन मीन्स खुल जाएगी. व्हेन डज योर स्कूल क्लोज? फिर उसने क्वेश्चन पूछा कि आपकी स्कूल कब क्लोज हो रही है. वाई डोंट यू कम हियर? तुम यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हो? वी विल हैव अ ग्रेट फन. अगर तुम यहाँ पर आ जाओ तो हम अच्छा सा फन करेंगे. बाय फॉर नाउ सेड आतिफ. ओके, अब ये लेटर मीन्स किसने लिखा? आतिफ ने लिखा सबाना को. अब सबाना को जब लेटर मिला तो उसने भी रिप्लाई दिया. नाउ सबाना वो स्टे इन नागपुर गॉट दिस लेटर ऑन 6 May 2006. तो उसने लेटर लिखा था 1
मे को लिखा था और 6 मे को उसको लेटर मिल गया, तो 5 डेज़ के बाद उसको लेटर मिला। शी रॉट बैक टू आतिफ, उसने आतिफ को वापस लिखा, मीन्स वो नागपुर से लिखा, नागपुर 7 मई 2006। तो जैसे उसको 6 मई को लेटर मिला तो 7 मई को उसने लेटर लिखा एक दिन के बाद। तो डियर आतिफ, हेलो, सो आई एम डूइंग वेल हियर, आई गॉट योर लेटर येस्टरडे, मुझे आपका लेटर कल मिला। हैप्पी हॉलीडेज़, माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून 2006। तो 1 जून को हमारी स्कूल क्लोज होती है। इट विल रीओपन ऑन 10th अगस्त, 10th अगस्त को रीओपन होगी। आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा एंड विल रिटर्न ऑन द 7th जून 2006। तो जैसे मीन्स अपने हॉलीडेज़ ख़त्म होते हैं तो तुरंत हमारा टूर है और मैं 7 जून को वापस आऊँगी। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट, बाय, मीन्स मैं गोवा की ट्रिप के बाद वापस मीन्स अजमेर आने का ट्राई करती हूँ, सबाना। फिर आतिफ रोट हिज लेटर ऑन फर्स्ट May 2006। यू रिमेंबर हाउ वी राइट डेट इन नंबर्स। तो जैसे ये फर्स्ट मीन्स 1/5/2006, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, में जो फर्स्ट होता है वो डे होता है, देन मंथ, देन ईयर। तो 1 May 2006, 1 May 2006। नेक्स्ट पेज। So now write which dates these stand for. So here like 5/5/2006, तो यहाँ पर 20, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 20 मई, बिकॉज 5th मीन्स May 2006। फिर दिस इज 7, दिस इज 6, तो जून, 7 जून 2006। नाउ दिस इज 1/1, तो 1, दिस इज फर्स्ट मंथ, तो जनवरी 2007. Now write these dates in number. So this way you can write 1/6/2006. Okay. Now here May. So May means 5, 2006. Here 10 August. So 10/8, 2007. Okay. अब यहाँ पर क्वेश्चंस है रिगार्डिंग जो लेटर्स थे वो, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर्स टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर, तो मीन्स अजमेर से नागपुर जाने में कितना टाइम लगा। तो आपको नेक्स्ट पेज पे देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो अजमेर में उसने 1 मई को लिखा, लेटर लिखा 1 मई को, 1 मई को लेटर लिखा, 1 मई 2006 को लेटर लिखा, और उसको जो लेटर मिला 6/5/2006 को मिला। ओके। सो फर्स्ट मई को लेटर लिखा और शबाना को लेटर मिला 6 मई को मिला। तो कितने डेज उसको लगे, तो 1 मई से आप गिनो तो 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, तो कितने डेज हुए, 5 डेज हुए। कितने डेज हुए, 5 डेज, बिकॉज फर्स्ट डे से लिखा तो 2nd, 3rd, 4th, 5 एंड 6। ओके। तो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, तो 5 डेज। कितने डेज, तो हाउ मेनी डेज, तो इट टेक्स 5 डेज। क्लियर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, बार बार पेज टर्न ना करना पड़े। सो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, शबानाज हॉलीडे स्टार्ट फ्रॉम 1 जून 2006। आप देखोगे यहाँ पर शबाना की जो हॉलीडेज है वो स्टार्ट होते हैं 1 जून 2006, और स्कूल रीओपन हो रही है 10th अगस्त। तो 10th अगस्त को स्कूल रीओपन हो रही है, तो उसकी अगली डेट होगी ना 9th अगस्त तक हॉलीडे रहेगा। तो 9th अगस्त तक क्या होगा, हॉलीडे होगा। सेम वे आतिफ के जो हॉलीडे है वो 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, और मीन्स 30 तारीख मीन्स जून की 30 तारीख को मीन्स रीओपन हो रहे हैं स्कूल। तो 29 जून 2006 को तक वैकेशन रहेगा। तो उसमें नंबर ऑफ हमें डेज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ डेज। तो अब देखो लाइक 1 जून है, तो आपको पता है कि जून में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। पहले हम शबाना का फाइंड करते हैं। तो
जून के कितने डेज होते हैं, 1 जून से है तो जून के सारे डेज होंगे। सो जून के जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 30 होते हैं। फिर जून के बाद क्या आता है, जुलाई, जुलाई के 31 डेज होते हैं। फिर जुलाई के बाद अगस्त आता है, तो अगस्त के 9 ही होंगे, है ना, क्योंकि 9 अगस्त तक हॉलीडे है, तो नंबर ऑफ हॉलीडेज हमें फाइंड करने हैं। तो 30 + 31 + 9, तो 9 + 1 10, 1 कैरी, 3 + 3 6 + 1 7, तो कितने डेज हुए, नंबर ऑफ डेज 70 डेज। क्योंकि 1 जून से स्टार्ट हुआ तो जून के सारे डेज गिनाएंगे तो 30 डेज। जुलाई के, जून के बाद जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा, जुलाई के 31 डेज और अगस्त के 9 डेज, तो तीनों का प्लस करो तो 70 डेज। फिर आतिफ हॉलीडे, तो आतिफ के भी हॉलीडेज मीन्स 1 मई से स्टार्ट होते हैं, तो मई के सारे डेज होते हैं, तो मई के कितने डेज हुए, 31। फिर मई के बाद जून आ जाता है, तो जून में डायरेक्ट 29, तो प्लस 29, है ना, क्योंकि बीच में कोई मंथ नहीं है। तो 9 + 1 10, 5 + 2 3 + 2 5 + 1 6, तो इसको कितने होंगे, 60 डेज, 60 डेज। क्लियर। इस तरह से आपको नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। तो हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडेज, शबाना और आतिफ, तो शबाना को 70 मिले, इसको 60 मिले। ओके, मई की 31, ओके करेक्ट। नेक्स्ट, विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें समर हॉलीडेज मिलते हैं, तो आपको समर हॉलीडेज़ के आपको नंबर ऑफ डेज अपने आप फाइंड करना है। लाइक हम कहते हैं कि अप्रैल में 10 अप्रैल से हमारी एग्ज़ाम ख़त्म होती है, लाइक 10 अप्रैल टू 10 जून, 9 जून, ये आपको नंबर ऑफ डेज फाइंड करके बताने हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। Okay, page number 48. Now you can see it. On 15 May 2006, Chandran went to a shop to buy butter. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. So it was written on the packet, based before 180 days from the date of packing. मीन्स ये चेक करना होता है कि एक्सपायर मीन्स वो जो आइटम है वो मीन्स उसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हुई कि नहीं, वो चेक करने के लिए। सो देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, सो इट वाज 15/1/2006, मीन्स 15 जनवरी 2006 था। और उसके ये जो मीन्स डेट ऑफ पैकिंग है उसके 180 डेज तक आप उसको आप परचेज़ कर सकते हैं, है ना। जो मीन्स पैकिंग है उसके 180 डेज तक आप परचेज़ कर सकते हैं, फिर इसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। हेल्प हिम फाइंड आउट इफ़ ही शुड बाई दिस बटर और नॉट। तो इन विच मंथ वॉज द बटर पैक, तो बटर वॉज पैक्ड ऑन 15/1/2006. So which month will it be 180 days after 15/1/2006। तो हमें उसको गिनना पड़ेगा, तो कौन सा मंथ आता है 180 डेज के बाद, मीन्स 15/1/2006 से। तो 15/1/2006 में आई हैव ऑलरेडी मीन्स ऑलरेडी मैंने उसको कैलकुलेट किया हुआ है। सो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप जैसे कि जनवरी है, जनवरी में जनवरी के जो टोटल डेज होते हैं वो 31 होते हैं। कितने होते हैं, 31। सो 31 मीन्स ये 15 से हमें गिन रहे हैं, तो 15 से गिन रहे तो उसका एक मीन्स उसका एक डेट पहले माइनस करना होता है, तो 14, तो कितना होगा ये 17 होगा। सो जनवरी के 17 डेज हो गए, जनवरी के कितने हो गए 17। फिर 180 डेज़ कब आते हैं, तो फिर जनवरी, फिर फरवरी के 28 डेज़, मार्च के 31, अप्रैल के 31, मई के, जून के 30, फिर जुलाई के 13, तब जाके 180 डेज़ होते हैं। तो कौन सी डेट आएगी, जुलाई 13। कौन सी डेट आएगी, जुलाई 13। कौन सी डेट आएगी, जुलाई 13।
फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई? यस, बिकॉज ये जुलाई है, तो जुलाई तक मीन्स वो एक्सपायरी मीन्स वो मीन्स जो बटर वो एक्सपायर मीन्स उसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म नहीं होगी, तो जुलाई तक उसको ईट कर सकता है। तो मीन्स मई में तो वो ईट कर सकता है, क्योंकि मई जुलाई के पहले आता है, तो यस। अब नेक्स्ट, डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय? तो आपने अब मीन्स चेक करना है कि जो मीन्स उसका डेट ऑफ पैकिंग और एक्सपायरी डेट चेक करना है। हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटर्न ऑन देम? तो इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेक द मेडिसिन, है ना। तो आपने मेडिसिन में मीन्स हम मोस्टली चेक करते हैं कि उसका एक्सपायरी डेट कब ख़त्म होता है। तो विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विथ एन एक्सपायरी डेट? तो बहुत सारी चीज़ें जितनी भी ईटेबल थिंग्स हैं, लाइक चीज़ है लाइक बिस्किट्स हैं, देर आर मैनी थिंग, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारी लिख सकते हैं जो मीन्स उसकी एक्सपायरी डेट होती है, ऑलमोस्ट ईटेबल आइटम की मोस्टली होती है। ऑन अ कप सिरप इट वॉज रिटर्न अ मैन्युफैक्चर डेट 7/03। तो ये जो 7 होता है वो मंथ होता है और ये ईयर होता है, ओके। तो दिस शोज इट वॉज मेड इन जुलाई 2003। फिर एक्सपायरी डेट इज़ मंथ 7 एंड ईयर 2005, ओके। तो आपको मीन्स ये मंथ है और ईयर है, मंथ है ईयर है। तो दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज़ सेफ टू टेक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज़ सेफ टू टेक। तो आपने मैन्युफैक्चर में है वो 7 मई 2003 है और एक्सपायरी डेट है 7 मई 2005 है। तो 3 से 5 आप गिनो, क्योंकि डेट तो सेम ही है, मीन्स इसका ये तो सेम ही है 7 तो अराउंड कितने होते हैं, अराउंड कितना हुआ, अराउंड इट टेक्स अराउंड 2 ईयर्स। कितने हो गए? दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज़ सेफ टू टेक। तो अराउंड लाइक 7 2003 से 2005, तो कितना हुआ 2 ईयर्स, और ये तो अराउंड इट इज़ अबाउट 2 ईयर्स। व्हाट मंथ एंड ईयर इज़ रिटर्न एज 7/5? तो 7/5 है, तो 7 मीन्स डेट है 7, तो आप कह सकते हैं कि 7 तो जुलाई हुआ, मंथ मीन्स जुलाई एंड ईयर 2005, हाँ 7 मंथ एंड 2005। वुड इट सेफ टू टेक द कप सिरप इन सितंबर? तो आप उसको सितंबर में ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मीन्स जुलाई में ख़त्म हो जाता है, जुलाई मीन्स सितंबर के बाद आता है, तो नो, ठीक है, ओके, थैंक यू।